दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसको हमने एड्रेस किया है अपने पोर्टल में। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो जो इसका पोर्टल है इट्स ऑलरेडी अप एंड रनिंग। आप सूर्य घर पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल वेरी वन स्टेप प्रोसेस। आप अपना कंज्यूमर नंबर और डिस्कॉम चूज करेंगे तो वो डेटा पुल करके आपके सारी डिटेल्स फिल इन कर देगा। 100 किलोवाट का आपका ट्रांसफार्मर है, सो आई कैन नॉट कनेक्ट सोलर प्लांट मोर देन 100 किलोवाट ऑन डेट अगर 100% अलाउ किया है। अगर 85% अलाउ किया है तो 50 किलोवाट से ऊपर मैं उस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर पे नहीं फीड कर सकता। तो जितने भी नए प्लांट आएंगे उनकी अप्रूवल में प्रॉब्लम आती है। दिस वाज द प्रीवियस CFA स्ट्रक्चर 40% up to 3 kilowatt and 20% between 3 to 10 kilowatt. But the current CFA has been revised to 60% up to 2 kilowatt and 40% up to 3 kilowatt, considering a benchmark of 50,000 rupees per kilowatt. Hi everyone, welcome to the webinar. Today webinar features Mr. Yasir, a senior consultant at EY with experience in sustainable energy practices. He was a key member of the Muft Bijli Yojana development team. We will hear about his experience and insight. Hi Mr. Yasir, can you please introduce yourself with our audience? Thank you, Edesham. So, hello everyone. My name is Syed Yasir Ahmed, and I'm currently working as a senior consultant with Ernst & Young, EY. And currently I'm deployed at the Ministry of New and Renewable Energy. I've been supporting them in development of the new policy, which is the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Besides that, I've worked with state levels. I've worked with multilateral organizations, worked with bilateral organizations in the past also, and developed several of the policies at the state level and other central government ministries. So, besides that, academically speaking, I have got 3 master degrees now. I have an MSc in renewable energy, an MTech in renewable energy from Terry University, and an MBA from Liverpool John Moores University. I'm also certified project manager, a PMP certified from PMI Institute US, and a Bristol certified professional from Excelos UK. Thank you sir for introducing yourself with our audience. तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स जो इस प्रोग्राम में आपने किए हैं, या इस प्रोग्राम का क्या मोटिव है मुफ्त बिजली योजना का? So to begin with this, the idea of the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, it was it's got months into this policy, and only the policy for that matter takes months of fine tuning or the final policy to come out. So and before that, your experience from the past policies is also very important in the development of any new policy. So we look at the past policies, and I can just show you. So before the launch of the PM Surya Ghar Yojana, there were 2 other policies which are now referred to as phase 1 and phase 2 of the solar rooftop program. And the major component in the phase 1 was a direct subsidy of 30% for all consumers. Besides the residential, it also catered to other domestic category consumers. So if there were private hospitals, उनके लिए भी ये subsidy थी 30% if and other religious establishments. So whatever were contained in the domestic category, everybody had 30% subsidy. Following that was the phase 2 scheme. A phase 2 scheme had a component, the CFA component of 6,600 crore rupees. That was the financial outlay of the scheme. And in phase 2, so there was a big shift from phase 1 to phase 2. In phase 1, the state nodal agencies were the organizations that were implementing the scheme. In phase 2, DISCOMs were the implementing agencies. But what we noticed, in both of these schemes, that what was being done is at capacity, let's say, for 6,600 crore rupees, I had a capacity, let's say, 4 gigawatts, 4,000 megawatt was a capacity I had in mind. So any DISCOM जिनको solar लगाना होगा, they will come to me, they'll approach me कि I need a allocation from the ministry, and we would give them a allocation, let's say 100 megawatt उनको दे दिया, whatever their ask is, and based on their past performances, उनको कुछ उनको दे दिया, and then they would tender it. In tendering के बाद they will impanel vendors के साथ, then they will go into the market more, and vendors would identify consumers और उसके बाद लगाते थे. So that was how the capacities were allocated. Empanelment, जो impaneled vendors होते थे उनको consumers खुद identify करने होते थे. That was one of the challenges in this scheme. And इसमें तरीका ये होता था कि vendors जो CFA amount होता था, consumer नहीं pay करता था,
कंज्यूमर सिर्फ अमाउंट पे करता था नेट ऑफ द सब्सिडी अमाउंट. सो लेट्स से अगर मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख है एंड सब्सिडी 30,000 है, तो मैं सिर्फ 70,000 पे करूंगा एज अ कंज्यूमर. 30,000 विल बी पेड बाय द MNRE to the vendor through the implementing agencies. So that was the way in which the subsidy scheme was working. Though then the issues that were faced in phase 2 and phase 1 program is कि tendering बहुत ज़्यादा delay हो जाती थी. So let's say one tender is ending on day 0, and between day 0 and the next tender there will be a gap of 3 months. So vendor finalization was a very tedious task, and that led to delays in the project. So that was one of the key highlights from the both of the subsidy program. Then it was an L1 based bidding mechanism जिसका L1 quote आ गया. He is going to be the winner. And unviable prices से क्या होता है, quality of the services, the quality of the system is also reduced. So if somebody is quoting 50,000 and another person is under quoting say 48,000, the quality of 48,000 system and subsequently even lower system is going to be lesser than what somebody is offering at, let's say, higher price. That was also one of the findings. And most importantly, कुछ state में vendor impanel हो गए, say 20, some other state there are 400 vendors. So there is a huge gap in the number of vendors that have been impaneled in the state. And somebody, a vendor, एक participate कर रहा है, let's say in Gujarat, he can also participate in, let's say, neighboring state of Rajasthan, Madhya Pradesh, and let's say Maharashtra. But उसका capital एक जगह इतना अटक जाता था कि he would not be able to participate in other states. So vendor अपनी favorite states को pick कर लेते थे, and they will not try to go reach out to in other states. So that was also one of the problems that we noticed. Then there were problems in feasibility approvals. किसी को load अगर बढ़ाना हो तो that was a challenge. Net metering and commissioning के लिए there were delays. फिर डिस्कॉम्स का प्रॉब्लम ये था कि उनका डेडिकेटेड मैन पावर नहीं होता है फॉर सोलर रूफटॉप. सो इन सर्टेन स्टेट ऑफ कोर्स देयर आर सोलर रूफटॉप सेल्स, बट इन लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स देयर इज solar is an additional portfolio for the DISCOM official. So that is also a challenge that was faced by the DISCOMs. Availability of net meters is also a very big challenge. So once the system is installed, the DISCOM is supposed to install the net meter within the next 15 days or so. But अगर net meter है ही नहीं, then the process is very different. Then you have to buy it from the market. You have to get it tested yourself. And then once it comes back, you request the DISCOM to install it. So it takes a whole lot of time for the installation of net meters. And lastly was, if they are implementing agency, they have to be at the forefront of leading the engagement. It was observed that in many other states, because like I said, it was an additional portfolio, उनका interest नहीं था to lead the engagement in the way it should happen. We then shifted to realizing that these were the major issues. We shifted to national portal. This was launched in July 2022, and it addressed the problem faced in tender mode. So tender mode में जैसे I was telling, एक tender है दूसरे tender में gap है. So here at the national portal, we said there is no need to be a tender. It's going to be a centralized program now. People can directly apply it. People can directly apply at MNRE, and basis that we will be able to give them subsidy directly in their account. And CFA also, because हर state के tender rate अलग होते थे, तो CFA अलग होता था. But in our case, जब national portal पे आए, we created a fixed subsidy component. And for the residential, उनके लिए this is a single window system for residential. Everything can be done on this portal, and if there is some process at the DISCOM portal also, they can be directed from this portal itself. So that was national portal that we created. So then we've identified some of the problems, and that this led to the development of the new policy. Just quickly telling you the aim and objective of the process is very simple. This is an indicative graph. It is showing you the installation on the national portal. So जो phase 2 scheme में जितने भी plant लगे हैं, वो किस category के हैं? This is a ballpark figure. It's of course slightly here and there, but it would give you a basic idea. तब देखोगे 3 से 4 किलोवाट की कैटेगरी तक, 3 किलोवाट तक की कैटेगरी तक, huge number of systems have been installed, close to about 30%. But if you also include the 3 to 4 kilowatt systems, you will see 80% of all the installations by number, not by capacity, have been installed
within the 4 kilowatt range. So this gave us an idea कि जब हम scheme बना रहे हैं, so the focus area should not go much beyond 3 kilowatt. Most of the system is being installed in that category, so our focus should also be installing systems up to that capacity. So it came to the objective then became to achieve 1 crore household residential rooftop household installation in the country, to provide free and cheap electricity to at least 1 crore households. The required development of required ecosystem is also very important for the adoption of rooftop solar. So we're also working on that. And last is the UNFCCC. India is committed to, under the COP26, India has committed our NDC, and that has been a major part for driving all the RE related initiatives in India. So this was the previous CFA structure: 40% up to 3 kilowatt and 20% between 3 to 10 kilowatt. But the current CFA has been revised to 60% up to 2 kilowatt and 40% up to 3 kilowatt, considering a benchmark of 50,000 rupees per kilowatt. The financial outlay, which is the scheme, how big the scheme is, how much money has been infused into the scheme. Thus, the financial outlay of the scheme is 75,000 crore rupees. Subsidy that is being given out, it's capped at 78,000. So अगर 3 किलोवाट के ऊपर कोई इंसान लगाएगा तो उसको 78,000 ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा बियॉन्ड. बट आप लगा सकते हो, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. एमएनआरई डजंट हैव अ प्रॉब्लम. आप 10 किलोवाट लगा लो, 12 लगा लो, 15 लगा लो, बट आपको CFA 78,000 ही मिलेगा. Any system size permitted, as it is explained. And जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, RWS, CGHS सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनके लिए भी लगाने के लिए प्रोविज़न इसमें मौजूद है. बट क्योंकि RWS वगैरह में इंडिविजुअल कोई नहीं ओन करता है रूफटॉप, सो वहाँ पे जो कॉमन उनकी हाउस की रिक्वायरमेंट या कॉमन जो उनका कनेक्शन है, जिसमें लिफ्ट चलती होगी, पानी भरने के लिए मोटर चलता होगा, उस कनेक्शन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करने का इसमें प्रोविजन है. सो दैट इज द स्कीम. एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. सो आप जो इसका पोर्टल है, इट्स ऑलरेडी अप एंड रनिंग. इसमें आप सूर्य घर पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं. सिंपल वेरी वन स्टेप प्रोसेस. आप अपना कंज्यूमर नंबर और डिस्कॉम चूज करेंगे तो वो डेटा पुल करके आपके सारी डिटेल्स फिल इन कर देगा. डिस्कॉम से API इंटीग्रेटेड है, तो आपको सारा डिस्कॉम से डेटा पुल करके नेशनल पोर्टल पे आ जाता है. वहाँ पे फिर देन यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन ऑन द नेशनल पोर्टल, और आपको बाकी डिटेल्स कि आपकी लोकेशन कहाँ है, कितना किलोवाट लगाना है, ऑलरेडी कितना लग चुका है, एंड ऑल ऑफ दोज डिटेल्स वो आपको मेंशन करनी होगी, या आप खुद भर सकते हैं. इसका भी बहुत ही सिंपल वे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है. बट अगर आप खुद ही भर पा रहे हैं, देन यू कैन फाइंड अ वेंडर हू कैन डू इट फॉर यू. वहीं पे आप अपना वेंडर भी चूज कर लेते हैं कि किससे आपको लगवाना है. जितना भी सब्सिडी प्रोग्राम है, ये इम्पैनल्ड वेंडर से ही लगाने होते हैं, और सब्सिडी तभी मिलेगी अगर इम्पैनल्ड वेंडर ने आपके सिस्टम को लगाया है. अगर किसी इम्पैनल्ड वेंडर से आपने सिस्टम लगवा लिया है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, या आपकी जो क्राइटेरिया है इसमें उसको आप किसी समहाउ यू डोंट मीट इट, तो आपको सब्सिडी मिलने में प्रॉब्लम आएगी. तो उसको पहले से आप इस सेक्शन में जाके, इसके FAQ सेक्शन में जाके वो जानकारी आप ले सकते हैं. जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें अभी के लिए जो हमारी तरफ से एक डिमांड है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल की है. बट अगर स्टेट स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ स्टेट्स में आपको रूफ का राइट्स दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो आपको करने होंगे. उसके बाद जब सिस्टम आप लगा लेते हैं तो JCR जो जॉइंट कमिश्निंग रिपोर्ट होती है बिटवीन डिस्कॉम एंड योरसेल्फ एंड द वेंडर, तो JCR अपलोड कर दें, और उसके बाद अपना बैंक डिटेल्स नेशनल पोर्टल पे डाल दें, एंड सब्सिडी विल बी credited to your account. Thank you, sir, for sharing this presentation. I think you have almost covered all the topics. सर, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, कैन कंज्यूमर यूज इम्पैनल्ड वेंडर फ्रॉम अदर स्टेट? वेंडर्स अब नॉर्मली क्या है कि पहले क्या होता था, हर स्टेट में जो मैं बता रहा हूँ उनका कैपिटल ब्लॉक होता है, और 2.5 लाख रुपए उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए देने होते थे हर डिस्काउंट के साथ. अब वो कंडीशन हटा दी गई है. दे कैन चूज एनी स्टेट ऑफ देयर प्रेफरेंस. बट अगर उस वेंडर ने आपकी स्टेट नहीं चुन रखी होगी तो आपकी लिस्ट में दिखाई भी नहीं देगा. तो अनलेस ही हैज चोजन योर स्टेट एज अ प्रिफर्ड स्टेट, आप उससे लगवा सकते हैं अगर उसने ऑलरेडी चूज कर रखी है तो. Who is going to do feasibility study for solar installation? सो feasibility स्टडी करने के लिए हम AI
बेस्ड एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, जिसमें आपके हाउस होल्ड पे डायरेक्टली वो बता देगा कितना लग सकता है। बट अदरवाइज हमने बहुत ही सिंपल वीडियोस में ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे असर्टेन कर सकते हैं, बट कंज्यूमर्स मोस्टली उस चीज़ को गलत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप वेंडर से ही कंफर्म करें कि कितना शैडो फ्री रूफटॉप एरिया है, उस पर कितना लग सकता है। Okay, thank you. Next question is, sir, one PVG valid for one state or only one discount? सो अर्लियर इट यूज टू बी वन डिस्कॉम ओनली, एक पीबीजी एक डिस्कॉम में लगती थी। फिर हमने एक नोटिस के से इस चीज़ को करेक्ट किया कि पूरे स्टेट के लिए सारे डिस्कॉम्स एक साथ कर लें और एक ही पीबीजी से पूरा स्टेट में हो जाए। नाउ वी आर कमिंग अप विद अनदर सेंट्रलाइज्ड इम्पैनलमेंट, जहाँ पे वो जितने भी स्टेट्स हैं अपनी प्रिफर्ड, उसमें एक पीबीजी के अगेंस्ट हर जगह काम करने के लिए इम्पैनल्ड होंगे। Sir, if installation of 15 kilowatt for housing society, how much subsidy we get? तो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपने सीएफए का स्ट्रक्चर देखा होगा। एडिशनली सीएफए आपको मिल रहा है एट 18,000 रुपीज फ्रॉम द थर्ड किलोवाट ऑनवर्ड्स। तो पहले 2 किलोवाट के लिए तो 30,000 रुपये है, बट थर्ड किलोवाट के लिए आई थिंक 18,000 है। सो 18,000 के हिसाब से कैलकुलेट, अगर आप 15 किलोवाट लगा रहे हो एंड अज्यूमिंग कि उस सोसाइटी में 10 किलोवाट के हिसाब से हाउस होल्ड हैं, मतलब एटलीस्ट 2 घर हैं, तो आपको 15 इंटू 18,000 इतनी सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हो। Next question is, sir, in residential societies, if individuals are planning to install solar, for example, 10 flat members, so can they avail subsidy individually? इंडिविजुअली में अगर रूफ का एक्सेस है तब तो कर सकते हैं, बट मोस्टली आरडब्ल्यूएस में रूफ का एक्सेस नहीं होता, या सिंगल कनेक्शन सोसाइटीज़ हैं। ऐसी बहुत सारी दिल्ली में सोसाइटीज़ होती हैं, अदर स्टेट्स में भी, जहाँ पे बल्क पावर सप्लाई किया जाता है। तो डिस्कॉम की तरफ से सिर्फ एक कनेक्शन आता है, एक मीटर होता है, और इंडिविजुअली वो घरों में अलग अलग चला जाता है, और सब मीटर्स इंटरनली वो लोग देख लेते हैं कैसा है। सो उन सोसाइटीज में कॉमन जो लोड है, आप उसके लिए तो अवेल कर सकते हो, इंडिविजुअली अपने लिए नहीं कर सकते। बट अगर किसी सोसाइटी में आपका इंडिविजुअल मीटर है और आपके पास रूफ एक्सेस है, मतलब रूफ एक्सेस का डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तो उसमें आप सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया है, सब्सिडी कितने टाइम में आ जाएगा कस्टमर के अकाउंट में? तो मनीष जी, अगर आपने नेशनल रूफटॉप नेशनल पोर्टल पे वर्क किया होगा या अपने फीडबैक लिया होगा, तो पास्ट फ्यू मंथ से बहुत ही एग्रेसिवली ऐसा भी देखा गया है कि विद इन अ वीक सब्सिडी रिलीज कर दी गई हो। अगर आपकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन सही है और कोई गलती नहीं है, तो सब्सिडी कैन बी रिलीज विद इन अ वीक। बट आप सबको भी ये बताना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ड्यूरेशन में सब्सिडी रिलीज करने का जो भी प्रोविजन होगा, उसी के हिसाब से सब्सिडी रिलीज हो सकती है। बाकी उसके बाद वंस द डेट इज लिफ्टेड, सब्सिडी तेजी से रिलीज हो जाएगी। What maintenance practices to be followed by the customer for solar PV? ये दिवाशीष पाटिल जी ने पूछा है। विवाशी जी, बहुत ही सिंपल, क्लीनिंग इज द ओनली मेंटेनेंस इज दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। अगर आप प्रॉपरली मॉड्यूल्स को क्लीन करेंगे तो आपको उसका जनरेशन भी ज़्यादा मिलेगा और आपका उससे पेबैक भी बहुत कम रहेगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो मैं रेकमेंड करूँगा कि इंसान खुद से करे। इट्स एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। The next question is रिजवान की तरफ से, एनी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट? विवान, रेजिडेंशियल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज मेरी नॉलेज में नहीं है। फॉर सोलर, आई एम अज्यूमिंग कि सोलर पावर प्लांट के लिए पूछ रहे होंगे। लार्ज पावर प्लांट्स के लिए देयर आर इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेलेबल। रेजिडेंशियल के लिए नॉट हर्ड। The next question is, as a consumer, I see challenge in identifying competent vendors. How to address this? Yeah, that is a very good question. So this is again one of the problems जिसको हमने address किया है अपने पोर्टल में। What we have done is कि जितने भी vendors हैं उनका एक रेटिंग क्राइटेरिया हम तैयार कर रहे हैं, और उस रेटिंग क्राइटेरिया के आधार पे कंज्यूमर्स जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम बाय कर रहे होंगे, जिनको कोई आइडिया नहीं है, किसी और से रेफरेंस लेके नहीं आए हैं, किसी और का फीडबैक नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी कि अगर कोई वेंडर है जिसकी रेटिंग मल्टीपल क्राइटेरिया पे बहुत अच्छी है, और मान लीजिए हम ये भी दिखाएंगे कितने सिस्टम्स वो इंस्टॉल कर चुका है, तो आपको दोनों चीज़ों के आधार पे आइडिया मिल जाएगा कि हाउ गुड द वेंडर इज। उसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई विच वेंडर यू वांट टू वर्क विद।
Great. So another question from Naved is, if we have rooftop area available more than 3 kilowatt, but sanction load is 3 kilowatt, तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? This is a state regulatory, so power is a state subject. So उसमें कुछ चीज़ें तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स वगैरह बना के एड्रेस करती है, इन कुछ चीज़ें स्टेट से ही एड्रेस करती हैं. सो आपका जो सिस्टम लगा सकते हो, जो पहले भी एक सवाल आया था उसमें रेगुलेटरी वाले बैरियर्स को तो नहीं बताया था, तो इस क्वेश्चन में उसको देख लेते हैं. तो अगर कोई इंसान सोलर लगाना चाहता है तो वो दो जगह पे कैपिंग होती है. एक तो सैंक्शन लोड के फॉर्म में कैपिंग हो सकती है. तो मान लीजिए जो आपका बिजली के बिल पे लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लोड या सैंक्शन लोड, मेरा जो सैंक्शन लोड बिजली के बिल पे लिखा है मैं उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता बहुत सारी स्टेट्स में. इसमें भी एक या दो स्टेट्स हैं जिसमें बियॉन्ड द सैंक्शन लोड लगाने की परमिशन है, जैसे कि दिल्ली में आप 1 किलोवाट का भी अगर आपका लोड है और आप 500 किलोवाट सोलर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो. तो दैट इज अ मेजर बैरियर इन मेनी स्टेट्स कि आपका सैंक्शन लोड बैरियर है. द सेकेंड थिंग इज कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे भी कैपिंग होती है. तो वो जगह पे कैपिंग होती है. एक तो कैपिंग होती है मेरे जो घर का सैंक्शन लोड है, बिजली के बिल पे लिख के आ रहा होगा, उस सैंक्शन लोड पे कैपिंग होती है, तो मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता बहुत सारी स्टेट्स में. उसके अलावा एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्ट जो कुछ केसेस हैं जैसे दिल्ली और गुजरात, जहाँ बियॉन्ड सैंक्शन लोड भी सिस्टम लगाए जा सकते हैं. तो उन स्टेट्स को हटा के बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में 100% के बियॉन्ड आप नहीं ले जा सकते. In case of this is one of the capping. The second capping is at the distribution transformer level. तो distribution transformer पे कुछ स्टेट में 100% तक जा सकते हैं. तो अगर मान लीजिए मेरा जस्ट इन एग्जाम्पल 100 किलोवाट का आपका ट्रांसफार्मर है, सो आई कैन नॉट कनेक्ट सोलर प्लांट मोर देन 100 किलोवाट ऑन डेट. अगर 100% अलाउ किया है, अगर 85% अलाउ किया है तो 50 किलोवाट से ऊपर मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे नहीं फीड कर सकता. तो जितने भी नए प्लांट आएंगे उनकी अप्रूवल में प्रॉब्लम आती है. सो इस दोनों के बेसिस पे नावे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टेट देख लें. स्टेट में जो सैंक्शन लोड है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, तो वो आपके लिए एक रेगुलेटरी कैपिंग आप उसे समझ सकते हैं. बट हमने इस चीज़ को MOP के साथ टेकअप किया है. बहुत सारी स्टेट्स में हमने देखा है कि इसके बियॉन्ड पे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको अपने घर का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है. आपकी जो वायरिंग है वो इसलिए नहीं बनी कि आप बियॉन्ड सर्टेन कैपेसिटी लगा पाओ, या डिस्ट्रीब्यूशन जो यूटिलिटी आपके डिस्कॉम से बिजली का तार आ रहा है वो भी एक सर्टेन कैपेसिटी के लिए आया है. तो वो खर्चे आपको अपनी तरफ से करने होंगे अगर आप अपग्रेड करना चाहें. बट हमारा रिकमेंडेशन MOP को यही है कि बियॉन्ड भी अलाउ करना चाहिए अगर कंज्यूमर वो कॉस्ट बेयर करने को तैयार है. How PSU like NTPC are going to provide RESCO model for rooftop solar? को मॉडल करने के इसके कई स्कीम में डिफरेंट मॉडल्स को परमिट किया गया है. तो जो सबसे कॉमन था वो तो केपेक्स से कंज्यूमर डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है. बट बहुत सारी जगहें होंगी जहाँ पे रेस्को की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. CGHS सोसाइटी की कोई बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो अगर केपेक्स में नहीं लगा सकते इंडिविजुअली अपने घर पे, तो वो सोसाइटी को कन्विंस कर सकते हैं कि वो रेस्को मोड पे जाके लगा लें. रेस्को मोड पे लगाने का बेनिफिट उनको ये मिलेगा कि जो टेरिफ आएगा वो टेरिफ सब्सिडी को रैशनलाइज करके बना होगा. तो उनके लिए कुछ बेनिफिट उसमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और वो बिजली वो खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है. तो रेस्को मोड कोई सवाल पूछ रहा है, तो रेस्को मोड होता है बेसिकली कि मैं एक थर्ड पार्टी वेंडर को अपनी छत दे देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तुम सोलर प्लांट लगा दो. सोलर प्लांट लगाने की जो कीमत आती है, जो उसका कॉस्ट आता है, वो ये थर्ड पार्टी जो वेंडर है वो खर्च करता है. तो पूरा प्लांट वो लगाएगा, सब कुछ खर्चा वो करेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल सारी वो लाएगा, और वो कनेक्शन फिर आपको हैंड ओवर करेगा, और जो बिजली जनरेट हो रही है उसका वो आपसे पैसा लेगा. तो मान लीजिए आज की डेट में आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो डिस्कॉम से बिजली खरीद रहे हैं, बिजली विभाग से जो बिजली खरीद रहे हैं, वो समझ लीजिए 7 रुपये 8 रुपये की खरीद रहे हैं, तो वो रेस्को कंपनी आपको उससे सस्ते दाम में बिजली प्रोवाइड कर देगा. उसके लिए कुछ सर्टेन ईयर्स के लिए वो आपसे अग्रीमेंट करेगा, 20 से 25 साल के लिए वो अग्रीमेंट करेगा, जिसमें वो मान लीजिए 4 रुपए की बिजली आपको सेल कर देगा. तो इसको बोलते हैं रेस्को अरेंजमेंट, जहाँ पे आपको बिजली बेची जा रही है, लेकिन बेचने वाली कंपनी ने अपनी ही एक्सपेंस पे वो प्लांट लगाया है. तो अब मैं इसमें ये कह रहा था कि हमने बहुत सारे मॉडल्स
इसमें अलाउ कर रखें, ओपन कर रखें। सिर्फ एनटीपीसी नहीं, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई भी पीएसयू अगर इस मोड पे जाके हमारे पास इम्पैनल होकर रेस्पो मोड में कंज्यूमर को देना चाहे तो उसको भी सब्सिडी का प्रोविजन में हेल्प की जाएगी। The next question is, sir, how to connect new vendor empowerment with MNRE and nodal agency for this scheme, and what is the process? वेंडर एम्पैनलमेंट का प्रोसेस पुराना जो था वो तो स्टेट्स के साथ था। एट द मोमेंट हमने स्टेट्स के जो भी एम्पैनल वेंडर थे जो कि करीब 4000 है उनको डायरेक्टली इस स्कीम में ले लिया है क्योंकि ऑलरेडी एम्पैनल्ड है। जो नए वेंडर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। आप आरईसी जो रूरल एनर्जी कॉर्पोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर पीएसयू, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होंगे तो उनके पास आप उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा। आप उनकी वेबसाइट को चेक करते रहे। एक सेंट्रल एम्पैनलमेंट करने का प्रोसीजर वो जल्द ही लाने वाले होंगे। Can you please repeat on central PBG topic? सेंट्रल पीबीजी अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेंट्रल एम्पैनलमेंट की बात हो रही है। तो जिस तरह से वेंडर्स आज की डेट में हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट में अलग अलग डिस्कॉम को काम करने के लिए सबको 2.5 लाख रुपए देते हैं। तो 2.5 लाख मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े डिस्कॉम में या आप दिल्ली जैसा छोटी स्टेट में भी आ जाए तो यहाँ पे भी 4 डिस्कॉम है जो आज की डेट में वर्क कर रहे हैं। तो इन 4 डिस्कॉम्स में अगर आपको काम करना है तो चारों को आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे। तो जाहिर सी बात है दिल्ली जैसे छोटी सिटी में भी स्टेट में भी आपको 10 लाख रुपए जितना खर्च करना पड़ रहा है। तो आपका कॉस्ट ऑफ जिसको हम बोलते हैं आपका जस्ट टू स्टार्टिंग अप वो 10 लाख कैपिटल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया आपको एक स्टेट ओपन करने के लिए। सिमिलरली आप उत्तर प्रदेश जा रहे हो, वहाँ पे भी 6 डिस्कॉम है तो आपके 15 लाख रुपए वहाँ पे भी स्पेंड हो गए। अब दिल्ली में काम करने वाला तो नोएडा में ऑब्वियसली काम कर रहा होगा अज्यूमिंग, तो नोएडा में जाने के लिए अगेन पूरा आपको जो ये डिस्कॉम है उसके साथ 2.5 लाख। सो आपके बहुत सारा कैपिटल इसमें ब्लॉक हो जाता है सिर्फ स्टेट ओपन करने के लिए। तो बड़े जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बट छोटा वेंडर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उनको बहुत ही चूजी होना पड़ता था स्टेट पिक करने के लिए। तो इसमें सेंट्रल एम्पैनलमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वेंडर्स सिर्फ 1-2.5 लाख रुपए देके वो आरईसी के साथ एम्पैनल हो जाएंगे और पूरा इंडिया काम करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो वो सेंट्रल एम्पैनलमेंट आरईसी करेगा और आरईसी उसकी स्कीम और उसकी गाइडलाइंस और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आरईसी निकालेगा। तो उनकी वेबसाइट पे आपको उसकी डिटेल्स आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। बट उसमें ये है कि आप 1-2.5 लाख में पूरा इंडिया ओपन रहता है और आप सिलेक्टिव स्टेट्स बता दो कि मान लो मैं यूपी और दिल्ली और पंजाब करना चाहता हूँ तो उन 3 स्टेट्स आपकी प्रिफर्ड स्टेट्स में आ जाएंगे और वहाँ पे आप कंज्यूमर्स को शो करेंगे। सर एक मेरी क्वेरी थी कि लाइक ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के लेवल पे पैन लेवल पे किस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट करेगी? क्या इसका कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है? हमने देखा है कि पुरानी स्कीम्स में अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। इस स्कीम में स्पेसिफिकली अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा उस पर वर्क किया गया है अवेयरनेस के लिए। आने वाले समय में अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले नहीं तो उसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए। ऑलरेडी हमने रेडियो जिंगल्स के फॉर्म में आपको रेडियो पे ये अनाउंसमेंट आने लग रही है। इसके टीवी कमर्शियल्स आप देखने लग गए होंगे अगर आप सिनेमाज में जाते हो, और भी मीडियम, सोशल मीडियम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उस सब के थ्रू भी ये प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इस योजना से जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी आई हैं? तो सप्लाई चेन के एनालिसिस में राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मॉड्यूल से लेके उसके इन्वर्टर, केबल और पूरा सप्लाई लॉजिस्टिक्स सब कुछ मिला के एक एस्टिमेट हमारा है कि 15 लाख जॉब्स से क्रिएट हो जाएंगे हम पूरे डिप्लॉयमेंट को अगर देखें तो। आप वैल्यू चेन को एक्सप्लोर करें। वैल्यू चेन में जैसा मैं कहा लॉजिस्टिक्स भी होती है, मॉड्यूल भी होता है और इंश्योरेंस सेक्टर भी होगा। वो लोग भी होंगे जो साइट पे वर्क कर रहे हैं, इंजीनियर्स वगैरह जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो सब भी होंगे। कस्टमर एक्विजिशन के लोग होंगे। ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जो ओपन अप हो जाएंगी इस फील्ड से। अगर हमने एक सिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया था, अपने शायद गवर्नमेंट ऑर्डर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, वाराणसी को टारगेट किया गया था। तो आप अगर वाराणसी आज की डेट में जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फोकस के साथ उस पर काम किया जा रहा है।
जो उनका टारगेट है उस पर बहुत लग के काम किया जा रहा है। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोलर की फील्ड में अच्छी खासी आपको जॉब दिखाई देगी। जब ये स्कीम इस स्केल पे जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली जॉब जहाँ जहाँ जिस सेक्टर में रिक्वायरमेंट होगी वो सामने आने लग जाएगी। If I apply employment in one discount, then it will be eligible for pan India or only one state? आप डिस्कॉम के साथ अगर करोगे सो यू विल बी एक ही स्टेट में होंगे, बट आई डोंट थिंक डिस्कॉम इस पॉइंट पे रजिस्टर कर भी रहे होंगे। बट अगर वो कर रहे हैं तो आप उसी के माध्यम से एमएनआरई में अप्लाई कर सकते हो कि आप ऑलरेडी इम्पैनल्ड हो, देयरफॉर आपको हर जगह कंसिडर किया जाए। बट अदरवाइज आइडियली यू शुड वेट फॉर द आरईसी गाइडलाइंस। उसके माध्यम से अगर आप इम्पैनल करोगे दैट विल बी अ मच क्लीनर इम्पैनलमेंट। एक और क्वेश्चन थी सर, लाइक इतने बड़े लेवल पे जैसे इस प्रोग्राम को इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं, तो अगर सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाती है देन सोलर एसेट मैनेजमेंट का क्या रोल होगा इसको कंटिन्यू रखने के लिए? सो एसेट मैनेजमेंट तो इसका बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत बड़ा रोल होगा। जिस साइज पे हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी सफलता मिलती है 1 करोड़ घरों पे लगाने के लिए, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं अगर 3 किलोवाट कैपेसिटी है तो 30 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हमारे सिस्टम में आ जाता है। जाहिर सी बात है इसमें बहुत बड़ा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एसेट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, जो सिस्टम्स को मैनेज कर रहे होंगे कम्प्लीटली। क्योंकि कंज्यूमर्स की अगर उनको डिसीजन बन भी गया है सोलर लगाने का, तो टेक्नोलॉजी को कैसे मेंटेन रखना है ये उनके परव्यू में नहीं होगा, इतना उनको ज्ञान नहीं होगा। उस जगह पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का आई थिंक इज अ प्ले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर के जो बड़ी कंपनीज है लाइक अडानी हो गई, तो इन लोग का क्या रोल होगा इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाने में? तो अगर आप हमारे करंट सिस्टम में भी देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े वेंडर्स ऑलरेडी हैं जो वर्क कर रहे हैं एमएनआरई के साथ नेशनल रूफटॉप प्रोग्राम में। तो इनका ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है इंटरनली। और इनका ये क्या करते हैं, ये चैनल पार्टनर्स क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक ये लार्जर जो वेंडर्स होते हैं ये चैनल पार्टनर्स के थ्रू बहुत सारा एग्जीक्यूशन करेंगे और बहुत बड़ी कैपेसिटी एग्जीक्यूट करने के लिए केपेबल है। इनमें टाटा है और सनसोर्स कैनो, सन, कपल ऑफ अदर कंपनीज। सो ये कंपनीज दे डोंट डू इट डायरेक्टली, दे डू इट थ्रू चैनल पार्टनर, बट चैनल पार्टनर की ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो उनका पूरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो चैनल पार्टनर को देते हैं, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चैनल पार्टनर से, एंड पूरा जो मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग वो चैनल पार्टनर के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ दीज कंपनी बिकॉज जो कमिटमेंट्स इनके होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। दे हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग इन द पास्ट ऑल्सो, एंड इन द कमिंग डेज आई थिंक देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर एडिशनल चैनल पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया, क्योंकि इन्होंने भी अभी कुछ ही जोग्राफीज में फोकस करके काम किया है। बट आई थिंक वंस द मार्केट ओपन्स अप तो ये भी बड़ी अदर जोग्राफीज में मूव इन करने की कोशिश कर रही है। एक्सप्लेन 300 यूनिट्स फ्री और नॉट, एक श्याम साहब का ये क्वेश्चन है। So, Shyam Saab, 300 units free or not is what I would say is solar. हमारा estimate है कि on the higher side 360-350 यूनिट्स जनरेट कर रहा होगा अगर आप 3 किलोवाट लगाते हैं, तो 300 यूनिट उन टर्म्स में फ्री है कि सोलर आपको जनरेट करके एटलीस्ट 300 यूनिट्स तो दे ही रहा होगा पर डे ऑन एन एवरेज। सो उस एस्पेक्ट में फ्री है। अगर आप एब्सोल्यूट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं तो हमने जो आपको पहले बता रहा था बिजनेस मॉडल के फॉर्म में वो चीज़ अलाउ कर रखी है। अगर कोई एनटीपीसी मान लीजिए ऐसा करना चाहे या कोई पीएसयू ऐसा करना चाहे वो कर सकता है। इसमें एक और अच्छी बात है कि हमें बैंक्स के साथ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके साथ भी टाई अप्स कर रखे हैं, और वो एक बहुत ही लोन प्रोडक्ट्स, अच्छे लोन प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के लिए बना के लाए हैं, जिसमें वो 7% तक पे लोन अवेल कर सकते हैं। आई थिंक 7% इज द लोएस्ट फॉर एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो उस पे भी लोन अवेल करके अगर वो अपनी जेब से नहीं खर्च करना चाहते हैं पैसा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन अवेल करके सिस्टम्स को फ्री में, एब्सोल्यूट फ्री में लगा सकते हैं। जितनी आपकी बिजली का बिल आ रहा है आप उसमें भी सेविंग करोगे, उसी पैसे से आप अपनी ईएमआई भी भर सकते हो। सो सिस्टम इज फ्री इन दैट एस्पेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि जो पुरानी सब्सिडी स्कीम है वो कंटिन्यूअस रहेगी या नहीं रहेगी? विकास जी के क्वेश्चन में। विकास जी, जो पुरानी सब्सिडी स्कीम थी
जिस दिन का अनाउंसमेंट है, जो अप्रूवल ऑलरेडी आ चुकी है, उससे पहले जो भी लोग रजिस्टर कर हुए, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आज 10 तारीख है, 10 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है, तो 10 तारीख से पहले जो लोग भी सिस्टम्स में अप्लाई कर चुके थे उनको पुरानी सब्सिडी दरों पे सब्सिडी दे दी जाएगी। जो लोग सब्सिडी अनाउंसमेंट के बाद आए हैं, ये अज्यूम किया जा रहा है वो सब्सिडी अनाउंसमेंट के बाद सब्सिडी के अनाउंसमेंट सुन के ही आ रहे हैं, उनको नई सब्सिडी स्कीम के तहत जो सब्सिडी बनती है उस हिसाब से सीए पे दे दिया जाएगा। जो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सब्सिडी स्कीम जो फेज 2 है वो खत्म नहीं हुआ है, वो सबस्यूम हो गया है इस नई स्कीम के अंडर। तो जो पुराने सिस्टम्स लगे हैं जिनकी सब्सिडी नहीं गई है अभी फॉर वट एवर रीज़न, उनको सब्सिडी पुरानी स्कीम के हिसाब से मिलेगी। अगर उनकी सब्सिडी ज़्यादा बनती थी मान लीजिए, तो उनको वही सब्सिडी मिलेगी, और अगर उन्होंने बाद में किया है कट ऑफ डेट की, तो उनको नई सब्सिडी के हिसाब से पैसा मिलेगा। Is central impalement currently available for individuals seeking to work across Karnataka? If so, where can one apply? Yes, that will be available. आप REC की वेबसाइट को फॉलो करते रहें। REC will be coming up with the guidelines in a few days. या सेंट्रल एम्पैनलमेंट कैसे करना है, they will be coming up with that information in a few days. The next question is from Mangesh ke, sir, bank sector not supporting for solar loan. SBI, I have tried also any other bank. सर अभी SBI सपोर्ट करेगा आपको। SBI को के पास ऐसी लाइन ऑफ क्रेडिट हैं फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड अदर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ADB, जो वो कंज्यूमर्स, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली है। रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए वो फैसिलिटेट करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है। मेरे ख्याल से कोई और लोन प्रोडक्ट, चाहे होम लोन हो या कोई और लोन हो, वो 7% ब्याज की रेट में नहीं होगा। उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको अवेल कराया जा रहा है। तो SBI अभी सपोर्ट करेगा ये लोन प्रोडक्ट। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वो जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे उनको वो ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ये लोन प्रोडक्ट्स एक्सेस करते हैं और आपको SBI पूरा इसमें सहयोग करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो अगर कोई नया प्लेयर इंडस्ट्री में आना चाहे इस योजना के थ्रू, तो क्या उसके लिए स्पेस है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्योंकि ये 1 करोड़ घरों पे अगर ये लगा रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये 4 किलोवाट लग रहा है तो 40 गीगावाट हो गया, 30 गीगावाट हो गया, 3 किलोवाट लग रहा है। इतनी बड़ी अगर कैपेसिटी लग रही है और हमारा टारगेट सिर्फ कुछ ही साल में इसको लगाने का है, तो बहुत बड़ा एक वेंडर बेस का रिक्वायरमेंट होगा। करेंटली जो वेंडर बेस है जिसमें आई थिंक 3000 to 4000 वेंडर्स हैं, इतना वेंडर्स विल नॉट बी सफिशिएंट कि आप इतनी बड़ी कैपेसिटी लगा पाओ। अगर हमको इसे टाइम बाउंड वे में करना है तो इसमें बहुत सारे वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें अभी जुड़ोगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम तो आप ये समझो कि जब मंत्रालय स्टार्ट करेगा, अब बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है ऑलरेडी, तो कंज्यूमर्स को कुछ उनको फीडबैक तो मिल जाएगा, कुछ अवेयरनेस ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी। तो आपके लिए भी वर्क, जैसे बहुत पहले जो वेंडर्स काम करते थे मुश्किल होता था क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी, अब वो वर्क आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और वर्ड ऑफ माउथ और बाकी मार्केटिंग टेक्निक से आप इसमें अच्छा बिजनेस क्रिएट करने की देख सकते हो। बट मेरा पॉइंट यही है कि इसमें बहुत सारे वेंडर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो इसको इम्प्लीमेंट करके फिर उस कैपेसिटी को लगाने के लिए साथ में काम कर सकते हैं। The next question from Syam is, sir, I have a private limited company and providing rooftop solar system. I'm not impaneled in DISCOM and MNRE. What is the process for empanelment? प्रोसेस ऑफ एम्पैनलमेंट मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब जो पुरानी स्कीम थी उसमें आप डिस्कॉम के पास जाते थे, डिस्कॉम को 2.5 लाख रुपए देते थे और आप उस डिस्कॉम में करने के लिए सब्सिडी स्कीम में काम करने के लिए, अब वो उसको चेंज करके ये कह देता पूरी स्टेट में सिर्फ एक एम्पैनलमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक सेंट्रल किसी भी एजेंसी का पैसा दे के आप पूरे स्टेट में काम करने के लिए एलिजिबल होते थे। अब आप पैन इंडिया एलिजिबल हो जाओगे और REC के साथ एम्पैनल होके जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्कीम की उसके साथ, तो उसके लिए कुछ टाइम का वेट कर लें। सेंट्रल एम्पैनलमेंट जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप REC के साथ डायरेक्टली वर्क कर सकते हो। बेंचमार्क कॉस्ट जो MNRE ने जिसपे CFA कैलकुलेट किया है वो 50,000 रुपये पर किलोवाट है, लेकिन इसमें कोई टेंडर रेट या कोई रेट नहीं है जो कंज्यूमर से गवर्न होता हो। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी जो कंज्यूमर आपसे मांग रहा है, आप कुछ रीजनेबल अमाउंट, क्योंकि आपके पोर्टल पे जो मैं आपको वेंडर का वो बता रहा था उसमें आपके कोटेड रेट भी होते हैं, तो आप
ये चीज़ें पहले से डिफाइन कर रखे होंगे कि एक किलोवाट का इतना ये क्वालिटी के सिस्टम्स होते हैं, तो वेंडर के कंज्यूमर के साथ आपके नेगोशिएशंस वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर कोई आपसे कोई अलग से इक्विपमेंट या कोई बेहतर इक्विपमेंट मांग सकता है, आप उसको चार्ज कर सकते हैं एक्सेट्रा। उस पे सीएफए का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सीएफए हमारा वही बेंचमार्क पे होगा जो हमने अपने लिए आइडेंटिफाई कर रखी है, विच इज 50,000 रुपीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हाउ डज मुफ्त बिजली योजना अलाइन विथ इंडिया सस्टेनेबिलिटी गोल? सो सस्टेनेबिलिटी गोल, पहले तो जो नॉर्मल यूएन के एसडीजी गोल्स हैं उनको देख लो। तो इंडिया की ये स्कीम है वो कई एसडीजी गोल्स को फुलफिल करती है। तो उसी में एक तो पॉइंट नंबर जो गोल 7 है हमारा, गोल 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसको फुलफिल करता है। जो गोल 13 क्लाइमेट एक्शन एंड गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो ये सारे गोल्स को हमारा ये जो स्कीम है वो टारगेट करता है। बिसाइड्स दिस, इंडिया का खुद भी एनडीसी में कमिटमेंट है यूएनएफसीसीसी में, जहाँ पे हमने बोल रखा है कि हम अपना जो एक इमिशन फैक्टर है उसको बहुत रिड्यूस कर देंगे, 40% जो है वो 2005 लेवल से नीचे रिड्यूस कर देंगे। एंड बिसाइड्स दैट हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, वो हम 50% ले आएंगे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस। सो हमारा जो गोल है वो अलाइन है हमारे नेट जीरो टारगेट से फॉर 2070, और उसमें उसकी दिशा में जो ये सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ज़रूरत है डिसेंट्रलाइज जनरेशन की। तो डिसेंट्रलाइज जनरेशन के लिए रेजिडेंशियल रूफटॉप की ये स्कीम आई थिंक इज द बिगेस्ट स्कीम जो हो सकती है। Sir, one last question I would like to ask from on the behalf of my community as one, कि एज अ सोलर प्रोफेशनल कोई इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हो रहा है तो उसके लिए आपके पास क्या एडवाइसेज हैं? Okay, so I think this is the right time for anybody trying to start into this field. Whether you are seeking a job here, there's a lot of scope. जैसा मैंने बताया कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अंदाजन 1 लाख वेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1 लाख वेंडर्स और को इम्प्लीमेंट, 1 लाख वेंडर्स का मतलब टीम तो आप सोच सकते हो उसकी कितनी बड़ी होगी, तब जाके ये स्कीम ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो पाएगी। इसके अलावा जो एक एस्टिमेट है कि ये 10 से 15 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करता है पूरे सप्लाई चेन में। तो आपका सप्लाई चेन में जहाँ पे भी इंटरेस्ट हो, चाहे आप लॉजिस्टिक्स आरई रिलेटेड प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स देखते हो, चाहे आप आरई रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आप आईएनसी करते हो, चाहे आप एनी अदर वर्क करते हो, आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अदरवाइज अगर आप किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो उसमें बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी नई इंडस्ट्री में घुसना चाहोगे, जाना चाहोगे, तो वहाँ पे एंटर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर्स फेस करने सकते हैं, गवर्नमेंट चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे उन चैलेंजेस को एड्रेस कर दे रही है और आपके लिए एक बहुत ही लो एंट्री बैरियर वाला अच्छी मार्केट क्रिएट करने वाला पॉलिसी लेके आया है, जिसमें आप ज्वाइन करके इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। Thank you, sir, for sharing the wealth of knowledge. Thank you for having me here. Thank you everyone for joining in.